कबीर हर हीरा जन जौहरी लेकै मांडै हाट। जब ही पाइयै पाडू तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरियै ऐसा सिमरहु नित। अमरापुर बासा करहु हर गया बहोरै बित। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जो पावै नाम। कबीर जिह मार्ग पंडित गए पाछै परी बहीर। एक अवकट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त मालिक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। गुरता गति ते सुभाए मान धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र खजूरी अंदर बैठ करके रब्बी बाणी के अमोलक खजाने विचों शब्द कीर्तन श्रवण कीता है। और सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार नाल भी मन बिरतियां एकाग्र करते हुए गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विचों भगत कबीर साहब जी के जिन्हां पावन श्लोकां का अज असीं पाठ साझा कीता है। पहले श्लोक विच कबीर साहब कृपा करते हैं, कबीर हर हीरा जन जौहरी लेकै मांडै हाट। कबीर साहब आखदे ने हरि प्रभु मालिक का नाम कीमती हीरा है। जन जौहरी ते जिहड़ा हीरियां की परख करन वाला है, हीरियां नूं साम के रखन वाला है, हीरियां का व्यापारी है, वो मालिक परमात्मा का सेवक है। ते इस नाम रूपी हीरे नूं लैकर के लेके मांडे हाट ते अपनी दुकान अपनी हट्टी नूं सजाउंदा है। जिवें कोई जौहरी को व्यापारी जिहड़ा हीरियां का व्यापार करन वाला है ते सोहणे कीमती हीरे अपनी दुकान विच सजाउंदा है, इवें हरि परमात्मा का नाम कीमती हीरा है ते परमात्मा का भगत सेवक ये इस नाम हीरे का व्यापारी है ते इनू प्राप्त करके अपनी दुकान सजाउंदा है। लेके मांडे हाट अपनी दुकान सजाउंदा है, भाव अपने हिरदे रूपी घर विच परमात्मा का नाम रूपी हीरा इनू टिकाउंदा है। ते कहन लगे जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साट। तो जदों ये परमात्मा का भगत नाम हीरा सतसंगत विच आकर के
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂਘ, ਇਹੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਸਦਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਛੁਪਾਈ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਕਦਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਅਮਰਾ ਪੁਰਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਹੋਰੇ ਬਿਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
जिथे कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई फिक्र नहीं, सदा सुख ही सुख। यह जी अवस्था तेरी बन जाएगी। तो एक होर हर गया बहोरै बित, हरि मालिक परमात्मा ऐसा है, एक गवाचा होया धन भी वापस लै आंदा है। पदार्थां ते भोगां दे पिछे भजदियां मनुख ने अपने जीवन का सबर गवा लिया, संतोख गवा लिया, धर्म गवा लिया, धीरज नूं गवा लिया है, सेवा नूं गवा लिया, सिमरन नूं गवा लिया, सत्संगत गवा बैठा है। ये इहदा जीवन का कीमती धन है, ये गवा बैठा है। पर हजूर आखदे ने भी जे दिली भावना दे नाल मालिक नूं सदा चेते करें, हर गया बहोरै बित, मालिक तेरा वो गवाचा होया धन भी वापस दिवा सकता है। पर तेरी अंदरी भावना जिहड़ी है वो शुद्ध होनी चाहिए, पाक पवित्र होनी चाहिए है। तो कबीर साहब जी अगले श्लोक में कृपा करते हैं, कबीर सेवा को दुए भरे, एक संत एक नाम। कहना कि जे सेवा करनी है दोए भरे, एक संत एक राम, परमात्मा ते परमात्मा का सेवक भगत जाना। जे सेवा करनी है तो दोवां दी कीती जा सकती है, रब दी भी ते उसदे सेवक दी भी। क्योंकि राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। परमात्मा मुक्ति का दाता है, ते उस दा संत उसकी सेवा भगती बंदगी करने वाला जिहड़ा है वो तैनूं प्रेरणा देवेगा भी तू ही रब दा नाम जप। संत जपावे नाम, वो नाम जपाउंदा है, इस करके उसकी सेवा भी करनी चाहिए है। ते सतगुरु ने तो बाणी में बथेरी बारी जिक्र किया है, हजूर कृपा करते हैं भी साडा साथ उठन बैठन क्यों नहीं उन्हां नाल होवे जिन्हां नूं मिल करके परमात्मा नूं चेते करिए, जिन्हां नूं साथी बना करके साडे अंदरों मन मत दुरमत खत्म हो जाए। इहो जिहा साडा यतन होना चाहिए भी इहो जिहे साथी बन जान। बाणी आखदी है, जिन्हां दे संगणिया दुरमत बन जाए, जिन्हां दा दर्शन कीतियां भैड़ी मत माड़ी मत अंदरों नाश हो जाए, जिन्हां दे संगणिया दुरमत बन जाए। मित्र साडे से असल विच ओह साडे मित्र ने, ते जिन्हां नाल मिल करके विकार ही कीते जाण, जिन्हां दे साथ दे नाल मनुख ठगियां चोरियां रिश्वतखोरियां करनियां सीख जावे, इहो जिहे मित्र नहीं होया करदे, ओह ते सगों आत्मिक जीवन दे दुश्मन ने। इस करके हजूर भगत कबीर साहब जी इत्थे कृपा करते हैं, सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। रब मुक्ति का दाता है ते ओदा सेवक जन भगत जन इस तरह का जीवन देने वाला है जिहदे नाल व्यक्ति जिहड़ा है मालिक परमात्मा नाल एकमिक हो जाता है। इस करके रब दे भगत जन, सेवा करने वाले, सिमरन करने वाले, बंदगी करने वाले, उच्चा आत्मक जीवन बनाने वाले, सानू उन्हां दी भी संगत करनी चाहिए है। पर असी मेहनत करने वाले पासे तैयार नहीं हाँ। जिस मेहनत के सदका, जिस भगती सिमरन के सदका वो किसी उच्चे मुकाम ते पहुंचे है, असी वो मेहनत करना नहीं चाहते। असी कुछ सौखे रस्ते, माया वाले रस्ते लभदे हैं। जिवें सौखे तौर पर गल कर लीए भी असी आप बाणी पढ़ना नहीं चाहते, थोड़ा मुश्किल कारज है। असी की करते हैं भी माया दी, पैसे दिते तो बाणी पढ़ा ली भी साडे नाम का पाठ कर दो, अरदास कर दो। कबीर साहब जी आखते ने असी आप खुद मेहनत करनी नहीं चाहते, तो बहुत सारे साडे वर्गे ने जिहड़े रुपये पैसे दे करके धर्म खरीदना चाहते हैं। वो अरदास भी खरीद लेंदे ने, पाठ भी खरीद लेंदे ने। तो कबीर साहब पावन पंक्ति में कृपा करते हैं, कबीर जिह मार्ग पंडित गए, पाछै परी बहीर। जिस मार्ग, जिस रस्ते उत्ते ते पंडित तुरे फिरदे ने, कर्मा कांडां दे रस्ते ते, उन्हां कर्मा कांडां दे रस्ते ते पाछै परी बहीर, बड़ी भीड़ लगी हुई है।
एक अवकट घाटी राम की तिह चढ़ रहे हो कबीर। पर कबीर साहब जी आखते ने भी एक अवकट घाटी राम की, परमात्मा के नाम की घाटी अवकट है, पहाड़ी रस्ता औखा रस्ता है, तिह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर कला ही उत्थे चढ़िया हुआ है। भाव सिमरन करने वाले, बंदगी करने वाले, हो सकता है भी उन्होंने गिनती घट हो पर रस्ता सही है, मार्ग असल है, मंजिल उत्ते वो पहुंचणगे। ते जिहड़े कर्मा कांडां दे रस्ते नूं अपनाउण वाले ने, माया दे करके धर्म खरीदण वाले ने, उन्हां दी गिनती ते बहुत है पर मंजिल कोई नहीं है। रस्ता वो भी चल रहे ने पर मंजिल कोई नहीं है। तो तां करके कबीर साहब जी इस श्लोक विच भी सानूं बख्शिश करके समझा रहे ने कि असल विच अपने जीवन दे विच धर्म कर्म जिहड़ा है ये मनुख नूं अपना आप करना चाहिए है। धर्म खरीदिया नहीं जाता। सौखे लफ्ज़ां में असीं गल साझी करते हाँ भी जे भुख मैनू लगी है तो भोजन मैनू ही छकना पवेगा, कोई गुआढ़ी छक ले, दूजा छक लवे तो वो मेरी भुख नहीं मिटा सकेगा। ठीक इसे ढंग दे नाल धर्म जिहड़ा है ये मनुख का आपो अपना है, किसी दूजे तो खरीदिया नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता। धर्म हर एक मनुख का आपो अपना है, धर्म की किरत आपो अपनी है, धर्म का भरोसा आपो अपना है। तो कबीर जिह मार्ग पंडित गए पाछै परी बहीर, एक अवकट घाटी राम की तिह चढ़ रहे हो कबीर। तो अवकट घाटी सिमरन की बंदगी की मेहनत करने वाली, इहदे ते कबीर ही कला चढ़िया होया है। गुरु मेहर करे असीं भगत कबीर साहब जी इस तकरीर नूं, इस सिद्धांत नूं, विचार नूं समझ आइए ते अपना हथीं अपना आपे ही काल सवारीए इस सिद्धांत वाले पासे आइए। बाणी आप पढ़िए, सेवा आप करिए, सिमरन आप करिए, गुरु की सेवा विच अपने आप नूं जोड़िए। तो विचार अधीन अज दे जिन्हां 4 श्लोकां दा पाठ असीं साझा कीता, केंद्री भाव साझा करके समाप्ति कर रहे हैं। कबीर साहब जी आखदे ने परमात्मा दा नाम रूपी हीरा, प्रभु दे भगत जन जिहड़े ने उस नाम रूपी हीरे नूं लै करके अपना जीवन सवारदे, हर जीवन नूं शिंगारदे ने, सोहना बनाउंदे ने। ते जिवें मनुख दुख वेले, तकलीफ वेले रब नूं चेते करदा है, भावना दे नाल चेते करदा है, कबीर साहब जी आखदे ने इहो जी भावना दे नाल सदा चेते करना चाहिदा है। नुकसान भी जिहड़ा है उहदी भरपाई मालक कर दिंदा है। ते फिर कबीर साहब जी कृपा करते हैं, रब दे भगत जन परमात्मा दोहां दी सेवा भली है, राम जो दाता मौत को संत पावै नाम। ते अखीर विच कबीर साहब जी आखदे ने रबी सिमरन दी अवकट घाटी पौड़ी चढ़न वाले जिहड़े ने वो सचमुच मालिक के घर विच प्रवान हुंदे ने, कबूल हुंदे ने। तो कर्मा कांडा वहमा भरमा दा मार्ग छड़ करके असल सच दा रस्ता, गुरु के शब्द का रास्ता, गुरु के शब्द की कमाई वाला रास्ता असीं बनाइए। तो जिन्होंने गुरु का शब्द अपने जीवन में धारण किया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोक सुखिया परलोक सुहेला बना दिता है। हुई बेअंत भुलां दी खिमा। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।